بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم پیدائش دوست ممالک کے قونصل جنرلز کی جانب سے سالگرہ کی مبارکباد دی گئی۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ یہ پاکستان محمد علی جناح کا یوم پیدائش دوست ممالک کے قونصل جنرلز کی بابا قوم کی سالگرہ پر مبارکباد۔ برادر ملک چین کے کراچی میں تعینات قونصل جنرل قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر پوری پاکستانی قوم کو مبارکباد پیش کی۔ اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ Mahmoud Jinnah, the father of Pakistan. On this special occasion, I would like to extend my warmer greetings to all the Pakistan people. روسی قونصل جنرل کا کہنا تھا کہ محمد علی جناح نے محبت اور نظم و ضبط کا پیغام دیا۔ Dear viewers, kindly accept my sincere congratulations as well as best wishes on the occasion of Quaid-e-Azam Day. This holiday commemorates the great vision and unwavering commitment of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which remained the guiding light for the whole nation. جاپان کے نائب قونصل جنرل نے اپنے منفرد انداز میں اردو بول کر قائد اعظم کی سالگرہ پر مبارکباد پیش کی اور کہا کہ جناح کے افکار کی روشنی میں عوامی فلاح کے مشن آگے بڑھ رہا ہے۔ قونصل خانہ جاپان کی جانب سے یہ خوشی موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم حضرت محمد علی جناح صاحب کے سالگرہ میری دعا ہے تو انشاءاللہ پاک زبان دوستی پائندہ آباد اور زندہ باد۔ شکریہ۔ سفارتکاروں نے کہا کہ پاکستانیوں کی زندگی انتھک محنت اور جدوجہد کی خوبصورت مثال ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید زبیر راشد، TT21۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مشترکہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مزید تفصیلات سید زبیر راشد کی رپورٹ میں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں قائد اعظم کی سالگرہ اور کرسمس کی مشترکہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیک کاٹا گیا اور خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ دیکھیے۔ یوم قائد اور کرسمس مشترکہ اقدار کی علامت۔ گورنر ہاؤس کراچی میں کرسمس اور بابا قوم کے یوم پیدائش کا جشن۔ گورنر سندھ محمد کامران ٹیسوری کا کہنا تھا کہ پاکستان مملکت خداداد ہے جہاں تمام شہریوں کو مساوی حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی ہے۔ تمام اقلیتی برادری اپنے مذہبی تہوار منانے میں آزاد ہیں۔ نفرت کے بیانیے کو جو پاکستان میں پھیلایا گیا ہے اسے دفنا دیں۔ ہم اب ایک دوسرے سے قومیت کی بنیاد پہ اختلاف نہ رکھیں، زبان کی بنیاد پہ نہ رکھیں، مذہب کی بنیاد پہ نہ رکھیں، بلکہ اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ ہمارا راستہ کتنے سالوں سے، کتنی دہائیوں سے روکا رکھا تھا۔ گورنر ٹیسوری بولے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مورکہ حق میں شاندار فتح کے بعد اب مورکہ معیشت بھی جیتیں گے۔ پاکستان کی تجارتی اور معاشی پالیسیوں کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ کہ یہ سارا کریڈٹ فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس ملک کو اس دنیا میں اور اس خطے میں کئی دہائیوں کے بعد عزت دلائی ہے۔ آج پاکستانی معیشت کے راستے دنیا میں کھل گئے ہیں۔ گورنر سندھ نے PFCCI کے شکوت جیلانی و دیگر کے ساتھ مسیحی برادری میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ کیمرامین فرحان احمد کے ساتھ سید زبیر راشد، TT21۔ کرسمس کی خوشیاں پاکستان میں بھی رنگ لے آئیں۔ غیر ملکی سفراء اور قونصل جنرلز بھی کرسمس کی خوشیوں میں پیش ہیں۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیر نے مسیحی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ چین، روس، برطانیہ، جاپان اور آئیوری کوسٹ کے قونصل جنرلز نے کہا کہ کرسمس اپنوں کے ساتھ منانی چاہیے۔ سید زبیر راشد کی رپورٹ۔ مسیحی برادری کے لیے کرسمس خوشیوں کی بارش لے آئی، سفرا بھی خوشیوں میں شریک ہو گئے۔ کراچی میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں نے مسیحی برادری کو تہوار کی مبارکباد پیش کی۔ فلپائن اور قازقستان کے سفیروں نے کہا کہ کرسمس خوشی اور محبت کا پیغام لاتی ہے، اسے اپنوں کے ساتھ منانا چاہیے۔ And it is my honor to greet one and all a Merry Christmas. Here in Karachi we have about 1,500 Filipinos, and that is why I came all the way from Islamabad to be with them to celebrate Christmas, which is actually a commemoration of the birth of Jesus Christ, who is the founder of Christianity. Of course, I would like to wish a happy new year and Merry Christmas to Christians. May Allah Almighty bless all of us, and may next year will be better to Pakistan, to Kazakhstan, to the entire world, and hope that next year we will have a breakthrough in cooperation between Kazakhstan and Pakistan. چین اور برطانیہ کے سفارتکاروں نے کہا کہ کرسمس امن، محبت،
रवादारी और भाईचारे का दर्ज देती है। Christmas and New Year, I would like to extend my warm greetings to all their friends from Pakistan. And Merry Christmas and Happy New Year to all of you. I wanted to say Merry Christmas and a Happy New Year to all those who celebrate in different ways across Karachi and Pakistan. We look forward to meeting more of you and working with Pakistan into the new year, into 2026. Merry Christmas to those who are celebrating. As the joyful New Year season draws near, I would like to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan. The festive season provides a moment to reflect on the enduring values of peace, goodwill and compassion that unite everybody regardless of their different backgrounds. जापान और डी आयोरी कोस्ट के सिफारतकारों ने उर्दू ज़बान में मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जी, मैं क्रिसमस के इस मौके पे तमाम मसीह बरादरी को जो पाकिस्तान में रहते हैं और बैरून मुल्क सबको दिल की गहराइयों से क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूं और नया साल जो हमारा 2026 आने वाला है उसके लिए मैं तमाम पाकिस्तानियों को और पूरे दुनिया में जितने भी बसने वाले लोग हैं सबको नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं। कौंसल खाने जापान की जानिब से पाकिस्तान के सब मसीह कम्युनिटियों से मुबारकबाद करना चाहता हूँ इसी खुशी मौका क्रिसमस पर। तो मैं भी और अप्रिशिएट कर रहा हूँ पाकिस्तानी हुकूमत कर रहे हैं जो अक़लियतों की हम आहंगी कोशिश कर रहे हैं। सिफारतकारों का कहना था कि क्रिसमस माशरती हम आहंगी को फ़रोग़ देती है और पाकिस्तान में क्रिसमस की खुशियां हर साल की तरह इस साल भी दोबाला दिखाई दे रही हैं। सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह कराची में भी क्रिसमस का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। क्रिसमस के मौके पर बच्चे मुनफरिद अंदाज में खुशियां मनाते नजर आए। तफरीही मकामात पर भी रश लगा रहा। बच्चे छुट्टी के रोज़ झूलों से लुत्फ़ अंदोज़ होते दिखाई दिए। देखते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट। क्रिसमस पर हर तरफ खुशियों की बहार, तफरीही मकामात पर रश, बच्चों की बड़ी तादाद झूलों और मुख्तलिफ खेलों से लुत्फ अंदोज होती दिखाई दी। बच्चों का कहना था कि आज क्रिसमस के दिन हम सालगिरह भी मनाते हैं और अपने घर वालों से ईदी भी लेते हैं। बच्चों ने क्रिसमस के मौके पर झूलों के साथ तफरीही मकामात पर खूब इंजॉय भी किया। हमारे जीसस की बर्थडे होती है, इसे हम बहुत अच्छे से जश्न से मनाते हैं। यहाँ पे झूले झूलते हैं, अपने जीसस का शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं। अभी तो हमें ईदी नहीं मिली, अभी लेंगे हम लोग क्रिसमस के दिन पे बाहर जाते हैं, गरीबों में खाना बांटते हैं और ईदी हमें मिलती है और झूले लेते हैं। मसीही बिरादरी ने क्रिसमस के मौके पर गलियों को भी सजाया। बच्चे बड़े नौजवान सब ने नया लिबास जेब-ए-तन किया, जबकि घरों में मुनफरिद पकवान भी तैयार किए गए। कैमरामैन इमरान एके के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची में फ्रॉड का एक बड़ा इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक डिफेंस के 2 मुख्तलिफ मकामात से 15 गैर मुल्कियों समेत 34 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मुलज़िमान सरमाकारी के नाम पर शहरियों को लूटते रहे। तफसीलात आज जमाली की रिपोर्ट में। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटमार, क्रिप्टो और फॉरेक्स का झांसा और शहरियों की जमा पूंजी हड़प। कराची में फ्रॉड का इंटरनेशनल नेटवर्क पकड़ा गया। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने क्लिफ्टन ड्राइविंग लाइसेंस ऑडिटोरियम में NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर तारिक नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया कि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक मुनज़्ज़म बैनुल अक़वामी फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जिस दौरान 3 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले 15 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं, जबकि 19 मकामी अफराद को भी गिरफ्तार किया गया। तो ये जो कॉल सेंटर है, यहाँ पर इन्होंने छापा मारा, वहाँ से 15 फॉरेनर्स जिसमें 12 मेल अरेस्ट हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तानी जो थे उनमें 19 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं। उनसे जो वो पोर्टल चला रहे थे, वो सारा कॉल सेंटर का जो पोर्टल था उसमें जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो भी रिकवर की हैं। और ये जो पोर्टल है ये टेलीग्राम ऐप्स के थ्रू चला रहे थे। ज़ियाउल हसन लंजार ने बताया कि मुल्जिमान शहरियों को क्रिप्टो करेंसी और फॉरेक्स ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का झांसा देकर लूटते थे। मुल्जिमान के कब्जे से गैर मुल्की गेटवे एक्सचेंज सिस्टम्स, हजारों इंटरनेशनल सिम्स भी बरामद की गई हैं। 10,000 से ज़्यादा फॉरेन सिम जो हैं वो रिकवर हुई हैं इनसे, जो कि मुख्तलिफ OTP वगैरह के लिए या फॉरेन जो कि
उसमें जो कॉल सेंटर में यूजेज के लिए काम आती हैं वो भी इसमें पकड़ी गई हैं। और इसके साथ साथ जो तकरीबन जो ट्रांजैक्शन ये अमाउंटिंग स्पेसिफिक तो नहीं कह सकता, लेकिन $60 मिलियन के बराबर जो है ये ट्रांजैक्शन ये कर रहे थे और ये फ्रॉड हो रहा था। वजीर दाखिला सिंध के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जे से 37 कंप्यूटर और 40 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जबकि गिरफ्तारियां डिफेंस फेज 1 और डिफेंस फेज 6 से अमल में आईं। गिरफ्तार गैर मुल्कियों के ममालिक के नाम फिलहाल जाहिर नहीं किए जा रहे, ताहम वजारत खारजा मुताल्लिका ममालिक से राब्ते में है। कैमरामैन मोहम्मद इब्राहिम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। पुरतशद्दुद मुज़ाहमत और बराह रास्त फायरिंग के खदशात के बावजूद के इलेक्ट्रिक टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। साइट एरिया में सनती फीडर से बिजली चोरी का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया, जहां सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिजली चोरी की जा रही थी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। सनती फीडर भी निशाने पर। के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरों का बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया। के इलेक्ट्रिक ने साइट एरिया में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी और हसास कार्रवाई की। ये कार्रवाई ऐसे सनती फीडर पर की गई जो लोड शेडिंग से मुस्तस्ना था। तर्जुमान के मुताबिक सनती फीडर से गैर कानूनी इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए सालाना 1 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स बिजली चोरी की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी नेटवर्क को खत्म करने से रोकने के लिए हुजूम जमा हो गया, जबकि एक शरपसंद की जानिब से असलहा लहराने की इतलात भी सामने आई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त मौजूदगी और ताउन के बाइस कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। कार्रवाई के दौरान के इलेक्ट्रिक की गवर्नेंस टीमों ने पुलिस के हमरा HT नेटवर्क से मुंसलिक ओवरहेड और जेर जमीन केबल्स के गैर कानूनी जाल का इंकशाफ किया, जिसे मौके पर ही मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक साइट एरिया में ये पहली कार्रवाई नहीं, माजी में भी बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात के दौरान हुजूम इकट्ठा करके मज़ामत की जाती रही है। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक मुताल्लिका फीडर पर नुकसानात की शरह हालिया महीनों में 60% से तजावुज कर गई थी, जबकि गुज़िश्ता 12 माह में औसतन शरह 53% रही। इसका मतलब ये है कि फराहम की जाने वाली हर 2 यूनिट्स में से तकरीबन 1 यूनिट बिजली चोरी की नज़र हो रही थी। अशरफ खान, सिटी 21। मंगू पीर में आलमी तबलीगी जमात के सालाना इज्तिमा का आगाज़ हो गया। पंडाल में तकरीबन 3,84,000 अफराद के रिहाइश के इंतजाम किए गए हैं, जबकि इख्तितामी दुआ में 10 लाख से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इज्तिमागाह के बाहर शुरका के लिए पार्किंग का वसी इंतजाम किया गया है। इज्तिमा के इंतजाम, सिक्योरिटी और सहूलियात पर देखते हैं निज़मान अहमद की रिपोर्ट। तबलीगी जमात का सालाना सहरोजा रूह परवर इज्तिमा, फरजंदान इस्लाम की भरपूर शिरकत, फिजा रंगो नूर से मुअत्तर। मंगोपी टाउन में कायम इज्तिमा गाह में रूहानियत का समा। नमाज फजर के बाद से ही शुरका की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुल्क भर से काफिलों की शक्ल में आने वाले अफराद ने इज्तिमा गाह को भर दिया। सालाना इज्तिमा में जिक्र अस्कार और इस्लाह नफ्स पर खुसूसी बयानात का सिलसिला जारी है। इज्तिमा गाह में शुरका को सहूलियात की फरहमी के लिए टाउन इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। लेकिन इस वक्त जो है इज्तिमा के लिए हमें ये ज़रूरी समझ रहे थे कि ये जिस तरह की जो यहाँ ट्रैफिक की फ्लो होगी, उसके लिए जो है ये 3 किलोमीटर रोड है, चुंगी नया नाज़माबाद। ये इस वक्त हम खड़े हैं, ये 2 रास्ता मोड़ इसको कहा जाता है, पख्तूनाबाद। इस रात को 2 रातें लगा के जो है ना हमने इस रास्ते को मोटेबल किया है, ताकि यहाँ पब्लिक आएगी और ट्रैफिक का फ्लो जो है ना वो मुतासर ना हो। कि कोई भी अफसर हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो, वो ये 3 दिन छुट्टियाँ ख़त्म हैं, उन सबको जो भी हमारा मजहबी बड़ा इज्तिमा हो रहा है उनकी खिदमत के लिए सबको इधर आना पड़ेगा। और इज्तिमा गाह में मामूर खिदमत गुजारों का कहना था कि शुरका को सहूलियात की फरहमी के लिए 1 माह कबल ही तैयारियाँ शुरू कर दी गई थी। माशाल्लाह इज्तिमा के इंतजाम सारे मुकम्मल हमारे हो गए हैं। जितने छोटे मोटे काम थे सारे बड़े सब हो चुके हैं माशाल्लाह। अल्लाह इनको राज़ी हो, इनसे खुश हो। माशाल्लाह हमारे साथ बहुत ताउन कर रहा है। 1 महीने से जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट का काम हमारा जारी था और हमने यहाँ पे नोटिस किए हुए हैं, माइकिंग की हुई थी, अनाउंसमेंट कर दी थी सब जगह के जो है ना आपकी अपनी अपनी हदूद में अपने सारे जो है ना वो जितनी भी आपकी चीज़ें हैं उनको अंदर कर लें, वरना हम इस पर कार्रवाई करेंगे। तो 3 दिन से हमारा जो है ये मुस्तकिल जो है हमारी ये ड्यूटी लगी हुई है, एमरजेंसी नाफिज हुई हुई है चेयरमैन साहब की तरफ से कि जो है ना हमारे जितना भी स्टाफ है उस टीम में जो है वो भरपूर इसमें शिरकत कर रहा है। 4 रोडों पे काम किया जो कि पार्किंग को भी टच करते हैं और इज्तिमा को भी टच करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इज्तिमा के गेट से लेकर एम्पायर कॉलोनी, मंगो पीर मज़ार से लेकर चुंगी से लेकर नया नाज़माबाद के 2 नंबर गेट तक हम लोगों ने यहाँ वो भी गेड़ा भी डाला
मट्टी भी डाली और रोड को भी क्लियर किया। आने वाले मौजूद मेहमानों को इंशाल्लाह कोई तकलीफ का सामना नहीं होगा। इज्तिमा के शुरा के लिए रिहाइश, लंगर, तिब्बी सहूलियात और वज़ू और गुस्ल के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, जबकि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए स्पेशल प्लान मुरतब किया गया है। इज्तिमा का इख्तिताम 28 दिसंबर को इज्तिमाई दुआ पर किया जाएगा, जिसमें 10 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। नाज़रीन, मेयर कराची ने ज़िंदगी की 42 बहारें देख ली। मुर्तज़ा वहाब 2015 में वज़ीर आला सिंध के मुशीर बने थे। 15 जनवरी 2023 में मेयर कराची मुंतखब हुए। मज़ीद तफ़सीलात शेख मुख्तार की इस रिपोर्ट में। मुर्तज़ा वहाब 25 दिसंबर 1983 को कराची में पैदा हुए। उन्होंने गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से तालीम हासिल की, जबकि कानून की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हासिल की। उनके वालिद वहाब सिद्दीकी शोबा सहाफ़त से वाबस्ता रहे। वालदा फौजिया वहाब पीपल्स पार्टी की सरगर्म कारकुन होने के साथ साथ रुकने कौमी असम्बली के ओहदे पर भी रहीं। वालदा के इंतकाल के बाद मुर्तज़ा वहाब अमली सियासत से वाबस्ता हुए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2015 में अपना मुशीर बनाया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब 2016 में एंटी करप्शन के मुशीर बने, 2017 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर बने और 2018 में दोबारा मुशीर बराए कानून और एंटी करप्शन बने और जल्द महकमा इत्तलात का कलमदान हासिल करने में भी कामयाब हो गए। 2021 में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कुछ पार्टी रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद बैक वक्त एडमिनिस्ट्रेटर कराची, तर्जुमान सिंध हुकूमत, मुशीर कानून के ओहदों पर फाइज रहे। मुर्तज़ा वहाब ने 2018 में पीपल्स पार्टी के टिकट पर सूबाई असेंबली के हल्का PS 111 का इलेक्शन लड़ा, मगर इमरान इस्माइल से 22,000 वोटों के फर्क से शिकस्त खा गए। कराची में 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्शन नहीं लड़ा, मगर पीपल्स पार्टी ने कराची में कई नामों पर गौर करने और तंजीमी सेटअप के रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुर्तज़ा वहाब को मेयर कराची के लिए मुंतखब किया। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21।